ساتھ مزید بات کرتے ہیں، عید کے رنگ شامل کرتے ہیں۔ عید میں چند دن رہ گئے ہیں اور ملک بھر کے بازاروں میں عید کی خریداری جوبن پر پہنچی ہوئی ہے۔ تجارتی مراکز میں سحری تک خریداروں کا ہجوم رہتا ہے۔ اس پر ہم مزید بات کریں گے اور اس کے لیے ہم رخ کریں گے لاہور کا، جہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے شاہد حسین اور ان کے ساتھ ہیں عنبر قریشی۔ شاہد، کیا سما ہے اس وقت لاہور میں؟ جی، اس وقت لاہور میں تقریباً جتنے بھی بڑے بازار ہیں یا چھوٹے بازار ہیں ان میں لوگوں کی جو رش ہے وہ بڑا ہوا ہے۔ افطاری کے بعد ہی یہ رش شروع ہو جاتا ہے اور تقریباً سحری کے وقت تک جاری رہتا ہے، اور یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جیسے جیسے عید کا وقت قریب آئے گا یہ لوگوں کا رش بھی جو ہے وہ بڑھتا رہے گا۔ جی بالکل، اس وقت ہم لاہور کی دوپٹہ گلی میں موجود ہیں اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی گہما گہمی نظر آ رہی ہے۔ لوگ عید کی شاپنگ کر رہے ہیں، یہ چوڑیوں کے، کپڑوں کے، مہندی کے سب اسٹالس پہ بہت زیادہ لوگ نظر آ رہے ہیں۔ جی، ایسی ہی صورتحال جیسی کہ لاہور میں ہے، تقریباً پاکستان کے خواہ وہ بڑے شہر ہوں یا چھوٹے شہر ہوں، وہاں پر ایسی ہی صورتحال جو لوگوں کی گہما گہمی ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اسی سے متعلق جو ہے مختلف شہروں میں ہم اپنے مختلف نمائندوں سے بھی جو ہے وہ جانیں گے کہ وہاں پر جو کتنی گہما گہمی ہے۔ سب سے پہلے چلیں گے اسلام آباد، جہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ ذکیہ منظور۔ جی ذکیہ منظور، کیسا شہر اقتدار میں لوگوں کی کیسی گہما گہمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے؟ جی شاید اس وقت میں اپارا مارکیٹ میں موجود ہوں، اور اپارا مارکیٹ وہ مارکیٹ ہے کہ سپر اور جنا سپر کے مقابلے میں یہاں قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوتی ہیں، اور اگر عید کی شاپنگ کے حوالے سے بات کی جائے تو یہاں پہ نہ صرف بچے بڑے بلکہ بزرگ بھی ہمیں دکھائی دیے ہیں جو عید کی شاپنگ میں مصروف ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ مارکیٹ ہے یہاں پہ جو ہے جوتوں، کپڑوں، بیگز اور ان ساری چیزوں کی سیل لگتی ہے، اور اس ٹائم جو ہے گاہکوں کے ساتھ اور دکانداروں اور گاہکوں کے درمیان جو ہے ڈیل کرنے کا، بارگیننگ کرنے کا بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے، اور ان کو اپنے من پسند چیز جو ہے وہ آرام سے اچھے جو ہے نرخوں پہ مل جاتی ہے۔ لیکن ساتھ میں میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ جہاں لوگ خریداری میں مصروف ہیں وہاں لوگوں کا یہ بھی گلہ ہے کہ عید جیسے آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ بھی ہوا ہے۔ یہ گلہ تو ان کا اپنی جگہ، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ مہنگائی کا گلہ لیے ہوئے لوگ جو ہیں پھر بھی خریداری میں مصروف ہیں۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے، وفاقی دارالحکومت میں بڑے شاہی انداز سے جو ہے عید کی خریداری ہو رہی ہے۔ خواتین کے حوالے سے بات کی جائے تو خواتین کے چوڑیوں کے سٹال پہ، جوتوں کے سٹال پہ اور ریڈی میڈ جو گارمنٹس ہیں، کپڑے ہیں، ان کے سٹال پہ بھی خواتین کا ایک کافی رش دکھائی دے رہا ہے، اور یہ گہما گہمی جو ہے رات گئے تک جاری رہتی ہے۔ جی جی ذکیہ ہمیں بتا رہی تھی شہر اقتدار میں بازاروں کی صورتحال کے حوالے سے، اور اب ہم چلتے ہیں کراچی جہاں پہ ہماری موجود ہے نمائندہ نصرت وسیع۔ جی نصرت، بتائیے گا کہ کراچی میں کیا صورتحال ہے، مارکیٹس کی کتنا رش نظر آ رہا ہے، کیا گہما گہمی ہے؟ جی، عید کے حوالے سے لوگوں کا رش تو مارکیٹوں میں افطار کے بعد سے ہی بڑھ جاتا ہے، اور وہ یہ رش سحری تک جاری رہتا ہے، اور لوگ جوش و خروش سے عید کی تیاری کرتے نظر آتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمارے ساتھ جو ہے کراچی کے ایک معروف بازار میں بہت سارے لوگ شاپنگ کے لیے موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے عید کی شاپنگ کر لی۔ جی بیٹا، عید کی شاپنگ کر لی آپ نے؟ ہاں، میں نے عید کی شاپنگ کر گئی اور وہ بہت اچھی ہو گئی، اور کپڑے اتنے مہنگے مہنگے ہو جا رہے ہیں، اتنی مہنگائی بڑھ جا رہی ہے۔ آپ مہندی کب لگواؤ گی؟ مہندی چاند رات کا۔ جویلری لی؟ ہاں تھوڑی تھوڑی، اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے کچھ پسند ہی نہیں آ رہا۔ اچھا، یہ بیبی کہہ رہی ہیں کہ انہیں کچھ پسند نہیں آ رہا۔ ان کے ساتھ ایک اور خاتون بھی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی عید کی خریداری مکمل ہوئی یا نہیں۔ بس بچوں کی کچھ ہو رہی ہے، کچھ ہو جائے گی آگے ہی۔ تو آپ کو پچھلے سالوں میں اور اس سال میں کچھ فرق لگ رہا ہے؟ کوئی مہنگائی ہوئی ہے یا اتنے ہی ریزنیبل پرائز ہیں؟ ہاں بس تھوڑا سا فرق تو ہے، تھوڑا سا آ رہا ہے فرق، ویسے اتنا نہیں لگ رہا ہے۔ تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ قیمتوں میں اتنا زیادہ فرق نہیں پڑا ہے؟ نہیں ہو رہا، پچھلے سال بھی اتنے ایسے ہی تھے، بچوں کے اپنے کپڑے ایسے ہی تھے، اس سال بھی ایسے ہی ہے، بس 100-125 کا فرق نظر آ رہا ہے۔ یہ کچھ اور خواتین بھی ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ انہیں کیسا لگ رہا ہے اور انہوں نے کیا کیا چیزیں خرید لی ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی ماشاءاللہ لگ تو بہت اچھا رہا ہے، ہم لوگ شاپنگ کرتے ہیں ہمیشہ طرح، مگر کچھ حالات کی وجہ سے ہم لوگ دیر سے نکلے ہیں، مگر یہ ہے کہ مہنگائی تو ہے پہلے کے حساب سے، کافی ایکسپینسو ہے ہر چیز، بچوں کی شاپنگ سے لے کے بڑوں تک ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے، مگر پھر بھی لینا ہے، عید تو ہے نا۔ لینا تو ہے، بالکل یہ صحیح، بالکل لینا تو ہے۔ جی نصرت، بہت شکریہ آپ کا۔
بہت شکریہ آپ کا. ہمیں نصرت بتا رہی تھی کراچی کی صورتحال, وہاں پر لوگوں کی خریداری کا رجحان کیا ہے. اور اب چلیں گے فیصل آباد میں, جہاں ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں فضل عباس. جی فضل عباس, بتائیے عید کی خریداری کے لیے لوگوں کا کتنا رش بازاروں میں دیکھنا آ رہا ہے؟ فضل عباس سے بعد میں بات کریں گے. پہلے چلیں گے ہم ملتان, جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے حسنین اجاز. جی حسنین اجاز, بتائیے ملتان میں لوگوں کی خریداری کے کیا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے؟ کس حد تک لوگوں نے اپنی عید کی جو خریداری ہے وہ مکمل کر لی ہے؟ اس وقت عید کا میلہ بھرپور طریقے سے سج گیا ہے اور یہاں پہ مارکیٹوں میں بھرپور طریقے سے لوگ ہمیں شاپنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہاں پہ مارکیٹ میں اس وقت ہم ایک مرکزی مارکیٹ شریف پلازا میں موجود ہیں. یہاں پہ خواتین اور بچوں کا خصوصی طور پہ ہجوم ہے, جنہیں دیکھ کے لوگ کہتے بھی یہی ہیں کہ عید تو ہوتی ہی خواتین اور بچوں کی ہے. شاپنگ کے اندر زیادہ دلچسپی, زیادہ سرگرمی خواتین کی یا بچوں کی ہی نظر آ رہی ہوتی, جو اپنے جوتوں کے لیے یا ڈریسز. خواتین کی زیادہ دلچسپی, زیادہ گہما گہمی کے مراکز تو ہیں ان کے ڈریسز اور چوڑیوں کے ساتھ, جبکہ بچوں کے لیے ان کی جوتیاں اور گارمنٹس کے ساتھ جو ہیں یہ سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں, اور وہ نئے سے نئے کپڑے اور رنگین کپڑے پہننا چاہتے ہیں تاکہ وہ عید کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے یہاں پہ اس وقت بھرپور طریقے سے کاوشیں کی جا رہی ہیں. اور ملتان کے تمام تقریباً یہ صرف ایک مرکزی مارکیٹ کا حال نہیں, ہر پلازے میں اسی طرح کی صورتحال دکھائی دیتی ہے. جی حسنین, مجھے بتائے گا کہ بچوں سے کیا صورتحال موجود ہے وہاں کے بازاروں میں؟ یہاں کی مارکیٹ میں, یہاں پہ ملتان کے بازاروں میں بچوں کے حوالے سے بڑی خصوصی یہاں پہ ہمیں دلچسپی نظر آتی ہے. بڑی تعداد میں بچے, یہ خصوصاً جوتی اور گارمنٹس یہ بچوں کی سب سے پسندیدہ چیز ہے, اور یہاں پہ بچے بڑی تعداد میں نظر بھی آتے ہیں, اور نہ صرف نظر آتے ہیں بلکہ اپنے والدین کو بھی کھینچ کے لاتے ہیں تاکہ وہ عید پہ نئی جوتی پہن سکیں اور بڑے مزے سے رنگین سے کپڑے پہن سکیں. اس کے لیے ان کے نئے سے نئی چوائسیز بھی ہوتی ہیں, اور اسی یہی وجہ ہے کہ اس بار اس عید پہ ہمیں گارمنٹس کی دکانوں پہ ہمیں بہت زیادہ ہجوم دکھائی دے رہا ہے بچوں کا. جی حسنین, یہ بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ گارمنٹس وغیرہ کے جو دکانیں ہیں ان پر رش زیادہ ہے. یہ دیکھیں کہ اس وقت جو لوگوں نے اپنے جو کپڑے ہیں وہ ان کی جو سلائی ہے وہ تو مکمل کر لی ہے, تو کیا اب چوڑیوں کی طرف نہیں لوگوں کا فوکس زیادہ ہو گیا کہ چوڑیاں اور جو آخری دنوں کی چیزوں کی خریداری ہے اس طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہو گیا ہو؟ اصل میں اس بار ایسا ہوا ہے شاید کہ لوڈ شیڈنگ کا جو اتنا یہاں پہ مسئلہ تھا, اس بار درزیوں نے بہت پہلے سے ہی ہاؤس فل کر دیا تھا اور مزید کپڑے نہیں لے رہے تھے, اور اس کے بعد سے لوگ مردانہ بھی جو لوگ ہیں وہ بھی زیادہ تر گارمنٹس کا ہی دکانوں کا رخ کر رہے ہیں. جبکہ دوسری جانب ایسا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کا تو یہ چوڑیوں اور مہندی کا اسٹال تو خواتین کے ہمیشہ سے ہی فیوریٹ رہتے ہیں, اور وہ انہی کے گرد ہی ان کا زیادہ جھمگٹا نظر آتا ہے, کیونکہ موسم جو بھی ہو عید کا موقع ہے, اس پہ چوڑیوں اور مہندی کے بغیر خواتین کی تو عید ادھوری رہتی ہے نا. جی بالکل. جی یہاں سے ہم چلیں گے فضل عباس کے پاس, وہاں پہ ہمیں کچھ اندھیرا نظر آ رہا ہے, تو مجھے یہ بتائیے گا فضل کہ کیا یہ کوئی عید کی تیاریوں میں لوڈ شیڈنگ بھی بھنگ ڈال رہی ہے؟ جی امبر, بالکل. عید جیسے جیسے قریب آ رہی ہے یہاں پہ مسائل بھی لوگوں کے اسی کے ساتھ ساتھ ہیں, اور قیمتوں میں بھی اضافہ ہے. اسی کے ساتھ ساتھ لوڈ شیڈنگ ہو گئی ہے. یہاں پہ ابھی ہم موجود تھے اور اچانک سے یہاں پہ لائٹ جو ہے وہ گل ہو گئی ہے, مگر اس کے باوجود پھر بھی یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جوش و خروش کے ساتھ, جیسے ہی مرد حضرات اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں تو وہ اپنی خواتین اور بچوں کے ساتھ دکانوں پہ اسی حوالے سے آتے ہیں کہ وہ عید کی جلد از جلد تیاریاں پوری کر سکیں. مگر یہ اب ساری صورتحال تو ہمارے سامنے ہے, لوڈ شیڈنگ کا بھی ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, مہنگائی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے, مگر اس کے باوجود خواتین کی جو کمیونیکیشن سکلز ہیں جو کہ ان کی بارگیننگ کے حوالے سے مشہور ہیں, وہ اس کو بھرپور طریقے سے یوز کر رہی ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے وہ دکانداروں کو قیمت کم کرنے پہ منوا ہی لیتی ہیں. جی امبر. جی فضل بتا رہے تھے ہمیں فضل عباس کے کس طرح لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ لوگوں کی جو خریداری ہے اس میں کس طریقے سے بھنگ ڈال رہی ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے بھی یہ کہا ہے کہ سحری اور افطاری میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی, لیکن اس کے بعد جو شاپنگ کا اصل ٹائم ہے اس کے اندر شاید لوگوں کی جو لوڈ شیڈنگ ہے اس سے کاروبار بھی ان کا متاثر ہو رہا ہے. لیکن آخری دنوں میں چونکہ لوگوں کو خریداری کرنی ہی ہوتی ہے تو اس لیے وہ بازاروں میں نظر آ رہے ہیں. لیکن تو آپ کو پتا ہے لوڈ شیڈنگ تو سحری کے وقت میں بھی ہو رہی ہے اور بعض اوقات افطاری کے وقت میں بھی ہو رہی ہے. ہاں, یہ تو ہر جگہ پہ جو ہے وہ پرابلم کریٹ کیا ہوا ہے لوگوں کے لیے. جو دعویٰ تھا حکومت کا کہ جی سحری اور افطاری میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی, وہ کافی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ دھرے کا دھرا ہی ہے. اب چلیں گے پشاور, جہاں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے طارق وحید, ان سے صورتحال جانتے ہیں کہ پشاور میں اس وقت خریداری کا کیا صورتحال ہے.
जी तारिक वहीद, कैसी खरीदारी है, किस हद तक उरूज पे आपको पहुंची हुई नजर आ रही है लोगों की खरीदारी? जी, अब जबकि ईद की आमद में चंद ही दिन रह गए हैं तो दीगर शहरों की तरह पेशावर की रौनक भी बढ़ती जा रही है। अफ्तारी के फौरी बाद बड़ी तादाद में शहरी शॉपिंग प्लाजों का रुख करते हैं जहां पर वो अपने लिए के शॉपिंग में मसरूफ है और ये सिलसिला तकरीबन रात 12 बजे तक जारी रहता है। बड़ी तादाद में खवातीन और बच्चे भी खरीदारों में शामिल होते हैं। जो अहले सरवत है, जो साहब सरवत तबके के लोग हैं, वो यूनिवर्सिटी रोड और सदर के शॉपिंग प्लाजों की तरफ जाते हैं, जबकि गरीब तबके के जो लोग हैं वो अंदरूनी शहर के मीना बाजार और कोची बाजार, दीगर बाजार का रुख करते हैं जहाँ पर वो अपने लिए मुनासिब कीमत में ईद का सामान खरीदते हैं। साथ ही सिक्योरिटी इदारों की तरफ से खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि मुमकिन तौर पर ईद के शॉपिंग के लिए किसी भी बाजार को निशाना बनाया जा सकता है। यूनिवर्सिटी रोड के और सदर के वहाँ पर सिक्योरिटी तैनात कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद, इन खदशात के बावजूद पेशावर के जिंदा दिल शहरी बाजारों का रुख कर रहे हैं और बड़ी तादाद में वो खरीदारी में मसरूफ है, जिससे ये भी साबित होता है कि पेशावर के शहरी, बाहिम्मत शहरी अभी हौसला नहीं आ रहे हैं। तमाम तर खदशात और खतरात के बावजूद वो ईद का त्यौहार भरपूर तरीके से मनाकर दुनिया को अमन का पैगाम देना चाहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि ईद का वक्त करीब आ रहा है, बाजारों में रश तो बढ़ता जा रहा है, इसके साथ साथ जो रेडीमेड मलबूसात हैं इनकी बहुत ज़्यादा जो है डिमांड बढ़ गई है और पर्टिकुलरली जो रेडीमेड सिले हुए गारमेंट्स हैं इसमें नए नए लोगों की भी एंट्री हो रही है, नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए चेहरे नजर आ रहे हैं जो कि इनके अंदर आ रहे हैं और ये काम करें। इसी हवाले से हम इस वक्त देखते हैं पेशावर में हमारे नुमाइंदा हैं सैयद मोहम्मद इब्राहिम, उनकी इस रिपोर्ट में। पेशावर के मारूफ बाजारों और शॉपिंग सेंटर्स में ईद शॉपिंग का रश गैर मामूली तौर पर बढ़ गया है। जो लोग दर्जियों के साथ सर खपाने का हौसला नहीं रखते वो रेडीमेड गारमेंट्स का रुख करते हैं, जो नफा बख्श कारोबार बन चुका है और नए नए बुटीक खुलते चले जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि बहुत ही मुख्तलिफ और अच्छे डिज़ाइन में अब ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पेशावर के मार्केट को ये बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे। मुल्क में फनकारों, अदाकारों और गुलकारों के भी कई बुटीक हैं, जिनमें एक और इजाफा पश्तो गीत बीबी शीरीने से शोहरत पाने वाले गुलकार ज़ीक आफरीदी ने कर दिया है। मैंने यही सोचा कि यार क्यों ना ब्रांड ऑफ KPK को मैं इनिशिएट करूं। ज़ीक आफरीदी मलबूसात की डिजाइनिंग भी ज्यादातर खुद ही करते हैं। कैमरामैन वाजिद अली और साथी रिपोर्टर नोमान जान के साथ सैयद मोहम्मद इब्राहिम, समा, पेशावर। जी, पेशावर से अभी आपने रिपोर्ट देखी ईद की खरीदारी के हवाले से, और जैसे कि ये सूरत हाल पेशावर की हमें मुख्तलिफ शहरों से पता चल रही है, तकरीबन लोड शेडिंग की वजह से भी कोई ऐसी हमें नजर नहीं आ रहा कि लोगों की खरीदारी में कमी हो, और एक जो महंगाई की भी बारे में कहा जाता है कि इसकी वजह से खरीदारी कम काफी तंग जरूर किया है, लेकिन इसके बावजूद बाजारों में उतना ही रश मौजूद है, उतनी गहमा गहमी और लोग आ रहे हैं और खरीदारी भी कर रहे हैं। अगरचे कि वो महंगाई की काफी कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि लोगों की खरीदारी जो है वो ईद के करीब जो है वो फिर भी हमें बढ़ती हुई ही नजर आ रही है। इसी हवाले से भी सुबह बलोचिस्तान रह गया, वहाँ से भी हम देखते हैं कि कैसी लोगों की खरीदारी है, क्या रुझान है। मासूमा कुर्बान से हम जानते हैं कि वहाँ पर ईद की क्या खरीदारी के हवाले से लोगों के अंदर कितनी गहमा गहमी है, क्या रुझान है। जी मासूमा कुर्बान, बताइएगा कि कोयटा में लोगों की कैसी खरीदारी देखने में आ रही है। सर, मैं कोयटा की मशहूर चूड़ी गली में मौजूद हूँ और हम काफ़ी देर से यहाँ पर जो है वो आके ऑब्जर्व कर रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि वो कैसे अपनी ईद की शॉपिंग जो है यहाँ पर कर रहे हैं। चूड़ी गली जो है मशहूर है कोयटा की इस वजह से क्योंकि यहाँ पे मैचिंग चूड़ियाँ और कपड़ों के साथ की इसके अलावा कपड़े, जूते, मेहंदी, ज्वेलरी, हर चीज़ यहाँ पर मिलती है और ख़वातीन खासतौर पर इस गली में आना प्रेफर करती है क्योंकि यहाँ पे बच्चों की भी बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है। यहाँ पे हम बात करते हैं क्योंकि हमने जितने लोगों से बात की उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो चीज़ें वो बहुत महंगी मिल रही हैं, तो हम दुकानदार से बात करते हैं कि क्या वाकई में चूड़ियाँ महंगी होगी, क्योंकि चूड़ियों के बगैर तो खवातीन की ईद मुकम्मल नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम। तो ये बताइए कि लोग शिकायत करते हैं कि बहुत महंगाई होगी, क्या चूड़ियों का रेट बढ़ गया? बिल्कुल, हकीकत में पेट्रोलों की वजह से और हर चीज़ में महंगाई होगी, गैस, बिजली, इसकी वजह से जिन कारखानों में बनते हैं उनमें गैस कंसर्ट है, बिजली है, इस वजह से उनकी महंगाई की वजह से चूड़ियों के भी रेट बहुत फ़र्क आ गए। जी, जैसे कि इन्होंने कहा कि महंगाई का रोना, यानी हमने जिसे ही बात की उनका ये कहना था कि यहाँ बहुत ज़्यादा महंगाई है, चूड़ियाँ बहुत महंगी होगी, लेकिन अगर हम दुकानदारों का भी कहना सुने तो वो भी जायज़ है क्योंकि लोड शेडिंग का एक ऐसा मसला है जो कि मुल्क भर में सुलझने को ही नहीं आ रहा, तो हर चीज़ जो है उससे इफेक्ट हो रही है, कारखाने उससे इफेक्ट हो रही है। इस वजह से चूड़ियाँ जो है उनकी कीमतें पहले की निस्बत बढ़ा दी गई, लेकिन फिर भी खवातीन अपनी ईद को रंगीन बनाने के लिए रंग बिरंगी चूड़ियाँ लाजमी खरीद रही हैं और अपने साथ साथ अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए भी तोहफे तोहफे देने के लिए भी खूब सारी चूड़ियाँ जो है वो खरीद रहे हैं। इसके अलावा जो है मेहंदी और मैचिंग जो ज्वेलरी है उसकी भी शॉपिंग जो है वो की जा रही है।
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मासूमा। और इस वक्त हम जहां मौजूद हैं अपने लाहौर के बाजार में, तो अब हम लाहौर के बाजारों की रौनक आपको देखते हैं और आपको दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं। और इसके साथ हम चलते हैं थोड़ा सा अपने लोगों की जानिब। क्या ख्याल है, शायद जरा बात करें लोगों से। क्योंकि लाहौर की भी तो सूरत हाल अभी हम देख लें कि वहाँ पर यहाँ पर लोगों की कितनी गहमा गहमी है और क्या क्या खरीदारी की जा रही है। जी जी बिल्कुल जी। इस वक्त वैसे चूड़ियों वाले स्टॉल पे लग रहा है कि ज्यादा रश है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज्वेलरी के हवाले से भी बिल्कुल। इनसे बात करते हैं इस वक्त क्या खरीद रहे हैं। एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आप इस वक्त क्या खरीद रहे हैं यहाँ पे? बच्चों के लिए चूड़ियाँ लेने आए हुए हैं और चप्पल लेने आए हुए हैं। अच्छा, क्या खरीदा अभी तक आपने? ऑलमोस्ट सभी चीजें ले ली हैं, अब बस फाइनल टचेस हो रहे हैं। अब तो चूड़ियाँ और ये, हाँ जी। अच्छा, ये बताइएगा कि महंगाई के हवाले से हमने सुना कि चूड़ियाँ भी काफी महंगी हो गई जैसी है। अच्छा, हाँ जी। तो मैं तो समझता हूँ, मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ। मेरा ये ख्याल है कि ये हमेशा जैसा ही है। हाँ जी, कोई महंगाई शायद इतनी नहीं। जी शाहिद, ये तो कह रहे हैं यहाँ पे महंगाई नहीं है, तो अब हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहती हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कोई चूड़ियों के रेट पहले से ज्यादा हैं, कम हैं या सस्ती हैं? हमेशा से ऐसे ही होता है। नहीं, तो इस दफा लगता नहीं कि कुछ चूड़ियों का रेट ज्यादा नहीं, अगर ज्यादा है तो डिफरेंट भी है चीजें। अच्छा, और ये आपके साथ बड़ी प्यारी प्यारी दो बेटियां हैं मेरी। ओके। चूड़ियों के हवाले से लोगों की खरीदारी जो है वो भी बढ़ी हुई है और लोग जो हैं उनका रुझान भी चूड़ियों की तरफ, जैसे जैसे वक्त करीब आएगा ईद का, लोगों का रुझान जो है वो चूड़ियों की तरफ जो है ज्यादा उनका फोकस होगा। बिल्कुल, चूड़ियों और मेहंदी। जी अच्छा, अब जानते हैं हमारे इस्लामाबाद से एक रिपोर्ट बनाई है फौजिया अली ने। महंगाई में जो आदमी है उसको हकीकी खुशियों से महरूम कर दिया। मोहम्मद सफदर की तनख्वाह 10,000 रुपए है और उसको पुराने कपड़ों में ही ईद मनानी होगी। ऐसा क्यों है, बता रही हैं इस्लामाबाद से फौजिया अली। आज अदनान और अरसलान बहुत खुश हैं। आखिर इतनी जिद के बाद उनके अब्बू उन्हें ईद के कपड़े दिलवाने के लिए ले जा रहे हैं। नन्हे फूल अपने अब्बू का हाथ थामे बाजार में विंडो शॉपिंग तो कर रहे हैं, लेकिन जो चीज अच्छी लगती है उसकी कीमत का बोझ जेब सहार ही नहीं सकती। ईद की शॉपिंग करने हैं, कपड़े तो बहुत अच्छे हैं मगर महंगे बहुत हैं। कपड़े सस्ते होने चाहिए ताकि सारे बच्चे खरीद सकें और अच्छी ईद गुजार सकें। बाजार खंगालने के बाद आखिरकार सफदर ने अदनान और अरसलान के लिए कुछ खरीद ही लिया। उनका दिल बहुत सी और चीजें भी खरीदने को ललचाया, पर सफदर की जेब में इतनी सकत कहाँ। कितने की टोपी है जी? 150 रुपए की। ओए इतनी महंगी हम नहीं ले सकते जी। हेलो जी, बहुत महंगी है जी। 4 बच्चों का बाप मोहम्मद सफदर सरकारी महकमे में 10,000 रुपए माहवार पर माली का काम करता है। तो जो छोटे हैं 2 बच्चे, उनके लिए उनको ले देते हैं, किसी को जूता ले दिया, किसी को कपड़ा ले दिया। तो जो बड़े हैं दोनों, उनको समझा देते हैं कि आपको बड़ी ईद पे ले देंगे। बिजली के बिल, गैस का बिल, बच्चों की फीस, ट्यूशन, कोई नहीं गुजारा होता। अरसलान और अदनान की बड़ी बहन शाजिया माँ बाप की बेबसी पर शाकिर है। उसने ईद के लिए एक पुराना डब्बा महफूज कर रखा है जिसमें वो कांच की पुरानी चूड़ियाँ रखती है। सफदर की बड़ी परेशानी घर का खर्च पूरा करना है। ईद पर तो वो हर बरस की तरह पुराने कपड़े पहनकर ही नमाज पढ़ लेगा जो उसने 5 साल कबल बनवाए थे। कैमरामैन ज़ियाफत अब्बासी के साथ फौजिया अली, समा, इस्लामाबाद। तकरीबन हमने तमाम शहरों से ही देखा कि ईद की क्या सूरत हाल है। 2 रिपोर्ट्स भी हमने दिखाई। तकरीबन हमने जो 5 या 6 शहर बड़े जो हैं पाकिस्तान के, उनसे दिखाया कि वहाँ पर ईद की कैसी गहमा गहमी है। अब हम स्टूडियो वापस चलते हैं किरण और आफ्ताब की जानिब, और उनको वो भी देख चुके हैं कि अब कैसी यहाँ पर पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ शहरों में जो खरीदारी है वो उसका रुझान, उसमें गहमा गहमी कितनी है। जी सलमान, शायद आप इतने रोशनियों में और न जाने किन चीज़ों में खो गए हैं कि आप कह रहे हैं किरण और आफ्ताब की जानिब, हालांकि आफ्ताब गुरूब हो चुका है और इस वक्त रात का वक्त है। ये बताएं, जिस गली में आप हैं, ये दुपट्टा गली है। अंबर, आपने चूड़ियों की तो बात की, ये बताएं कि यहाँ पर दुपट्टे लोग खरीद रहे हैं और जो ड्रेसेस के गले होते हैं, क्योंकि दुपट्टा गली इस गली का नाम है, गले तो लोग मिलेंगे ईद पर, लेकिन क्या यहाँ पर वैसे गले मिल रहे हैं, दुपट्टे मिल रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ पे ऐसी चीजें बहुत ज्यादा मिलती हैं। स्पेशली जो आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो कपड़े लोग खरीदते हैं उनके साथ कलर्स यहाँ पे डाई होते हैं। टाई एंड डाई के दुपट्टे मिलते हैं, यहाँ पे चुनरी के दुपट्टे मिलते हैं जिसमें बहुत सारे रंग होते हैं। स्पेशली ईद की तो ये पहचान है कि ईद में ढेर सारे रंग जो है वो हम लोग लेके आते हैं। और यहाँ पे
कपड़ों के अलावा, दुपट्टों के अलावा चूड़ियाँ, उनके स्टॉल्स मौजूद हैं, ज्वेलरी के स्टॉल्स मौजूद हैं, रंग रंग की चूड़ियाँ यहाँ पे नजर आ रही हैं। हमारे साथ एक स्टॉल है यहाँ पे, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, डिफरेंट रंगों की खूबसूरत चूड़ियाँ नजर आ रही हैं। बच्चे भी यहाँ पे चूड़ियाँ खरीद रहे हैं। हमारे सामने एक बड़ी क्यूट सी छोटी सी बच्ची है और वो इतने प्यारे से चूड़ियाँ खरीद रही है। बल्कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है उस हवाले से अगर आप बात करें ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी को खरीदने का रुझान जो है वो बहुत ज्यादा हो गया है। उसकी एक वजह शायद ये भी है कि गोल्ड अब इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि वो अब तो लोगों के अफोर्ड से बाहर चला गया है। आपको पता है कि ईद में तो ऐसी ज्वेलरी, चूड़ियाँ, ये तो बहुत जरूरी है, एक चीज समझी जाती है कि जो कि पहननी है और जरूर आपने तैयार होना है, तो इसीलिए जाहिर सी बात है ये। जी, कपड़ों की जो खरीदारी है देखा जाए तो दर्जी जो हैं वो अब कपड़े नहीं पकड़े, बल्कि अब तो सिर्फ रेडीमेड गारमेंट्स जो हैं उनकी सेल इस वक्त, अगर किसी ने नहीं लिया तो सिर्फ रेडीमेड गारमेंट्स के ऊपर ही उसका फोकस होगा। इसके बावजूद आप शाहिद देखें, लेसेस की दुकान पे बहुत रश है। अभी तक जो है वो सिलाइयाँ हो रही हैं और टेलर्स के पीछे भागा जा रहा है। और ईद में तो शाहिद आप दोनों बाजार जाके ना चीजों में बिल्कुल खो चुके हैं। बहरहाल ईद से पहले ईद के रंग आप दोनों ने बिखेरे, आपका शुक्रिया। और अब हम यहाँ पर देंगे एक ब्रेक, लेकिन इस ब्रेक के बाद आपको बताएंगे जंगी मशकों में फौजियों के साथ आवाम की भी शिरकत। और धूमधाम से पांडा की सालगिरह। पाकिस्तान की क्वालिटी नंबर 1 फीनिक्स बैटरी, जो जदीद कोरियन टेक्नोलॉजी से तैयार करता और जापानी स्टैंडर्ड के ऐन मुताबिक है। इतनी बड़ी रेंज कि आपकी कार हो या जीप, बस हो या ट्रक, रिक्शा हो या टैक्सी, ट्रैक्टर हो या बुलडोजर, हर किस्म के इंजन को दे फीनिक्स बैटरी ताकतवर स्टार्ट, जो करे स्टार्ट पहले सेल्फ में, ज्यादा ताकत के साथ क्वालिटी जो नजर आए, 6 माह की रिस्क फ्री गारंटी के साथ, यानी बगैर किसी कटौती के, क्योंकि हमें एतमाद है फीनिक्स बैटरी की क्वालिटी पर। इसीलिए हम कहते हैं क्वालिटी हमारा वादा। मेगागिफ्ट, खुशियों का साथ दिन रात। ये लो भाई, मुबारक को बहुत बहुत बेटी हुई है। बेटा मैं तो इस वक्त कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, अगर आप लोगों ने देर कर दी तो ये 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म हो जाएगी। चिल्ड्रन हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन गरीब आवाम के मुफ्त इलाज के लिए 1000 सेंटर कायम करना चाहता है। ये आप और मेरी मदद के बगैर मुमकिन नहीं। आपका रुपया किसी गरीब और नादार की जान बचा सकता है। Let's rock with Megagate Play. Camera with video recording. High quality video player. 3.5 mm audio jack. Free 2 GB memory card के साथ Megagate Play. वेलकम बैक और अब समा स्पोर्ट्स। Sama Sports News is brought to you by Max Spot Reduction, Max Lightning. धूप हो या कैमरा, चेहरे पे कॉन्फिडेंस हमेशा Max. Audio jack. Free 2 GB memory card के साथ. Let's rock with Megagate Play. पाक भारत
भारत फुटबॉल सीरीज स्पॉन्सर्स ने मंसूख कर दी है। सीरीज का आगाज 3 सितंबर से इंग्लैंड में होना था। सीरीज के लिए पाकिस्तान और भारत ने अपनी टीमों का ऐलान भी कर दिया था। सीरीज में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम ने 27 अगस्त को लंदन रवाना होना था। दोनों टीमों के दरमियान 2 मैचेस खेले जाने थे। फुटबॉल फेडरेशन के डायरेक्टर मार्केटिंग सरदार नवीद हैदर के मुताबिक ऑर्गेनाइजर्स ने मुनासिब स्पॉन्सरशिप न मिलने पर सीरीज मंसूख कर दी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की टेस्ट टीम ऑफ द ईयर का इंतखाब आज होगा। एजाज के लिए इंग्लैंड की टीम हॉट फेवरेट है। क्लाइव लॉयड आईसीसी अवार्ड्स के लिए नामजद खिलाड़ियों की मुख्तसर फहरिस्त का ऐलान भी करेंगे। केंट इंग्लैंड में होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवार्ड सिलेक्शन पैनल और आईसीसी क्रिकेट कमेटी के सरबराह क्लाइव लॉयड इस हवाले से सूरत हाल वाज़े करेंगे। आईसीसी को अवार्ड्स के सिलसिले में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की मुआवनत हासिल है। खेल की मुख्तलिफ तर्ज में अपनी कारकर्दगी से जगमगाने वाले खिलाड़ियों को भी शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अवार्ड के लिए खिलाड़ियों की 11 अगस्त 2010 से 3 अगस्त 2011 की परफॉर्मेंस को मायार बनाया गया है। पाकिस्तान की जानिब से क्रिकेटर और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए कप्तान मिसबाहुल हक, जबकि एक रोजा क्रिकेट के बेस्ट प्लेयर अवार्ड के उम्मीदवारों में मोहम्मद हफीज और सईद अजमल शामिल हैं। बिस्मा मारूफ खवातीन क्रिकेटर्स की कैटेगरी में मौजूद हैं, जबकि उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी के लिए अदनान अकमल, वहाब रियाज और अजहर अली ज्यूरी की निगाह करम के मुंतजर हैं। एम्पायर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए पाकिस्तान के अली